cannot move here or there. In that, what you can do, you have to do. You can do not many things from the house also. No doubt. For that, you require a skill. You require a knowledge, and you require a good speaker who can motivate and explain to you that what you can do from your residence. Today's subject, what we have selected and given by the speaker, is none other than a beautiful subject: business management in current, current situation, which is going to be elaborated by none other than a very, very good speaker, Mr. Rajesh Agnello. He is a social entrepreneur who believes in learn, earn, and return. He is the chairman of St. Angelo's VN City Ventures, India largest villa developers across multiple cities. He, he is a first generation entrepreneur and worked globally in the sector of technology and education, concept-based real estate development, hospitality, and sports. He is currently developing a real estate project in and around Mumbai, Chennai, Madurai, Coimbatore, Hyderabad. He has international offices like in Dubai, Singapore, and London. No doubt, he, he himself says that he हाँ loves साहब to travel बोलो बोलो and his wealth. तो તમે કરેલા ને પછી બાદ Any problem? No. Can continue, sir. Okay, sorry. He himself says that he loves to travel, and his wealth is the friendships that he has built across the world. And he says that, last but not the least, he says that life is a beautiful journey and gift by God. He was invited by Josh Talks for narrating his business life on obstacles to opportunities. No doubt, this is also a sort of an obstacle at present going on into the economy of not only in India but also abroad. And I have just gone through his website. I listened to him. Really, he's a lovely speaker. My friends, I will say definitely you must listen to him very properly. First of all, I am very happy. I admire the way his speech, his pronunciation and expression is really lovely. He will not give you a chance that you have not understood him. Only thing is that with interest, you definitely listen to him. Herewith, I welcome Mr. Rajesh Engelio in front of you. Mr. Rajesh Bhai, good afternoon to you. Sir, Rajesh ji. Thank you so much. Yes, Thank you so Rajesh. much. Thank you so much, Jitendra Seth साहब. It was a wonderful introduction. Yeah. अतुल भाई आप कुछ बोलना चाहते हो? Yes, sir. हमारे प्रेसिडेंट सर आपको वेलकम करेंगे. मिस्टर सुनील शर्मा जी. सुनील जी. Yes, Yeah. sir, on behalf of Mumbai Photographer Association, I welcome you and hope कि आज का सेशन बहुत अच्छा हो. Thank you. हमारे वाइस प्रेसिडेंट भरत कोया जी हैं हमारे साथ, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे. वेलकम करेंगे सर. Welcome, Rajesh sir. We have heard a lot about you, and when I was informed that you are on board today, I just visited to your website and was very much impressed by it. You have trained more than 4 lakh students. My God, you are helping India to grow better and better every day. That's so nice of you. And so many awards from different faculty, political leaders, and I have all the list of with me. I can't mention much, but I was really happy to bring you to have you over here with us. It is a very great moment for us, sir. थैंक यू भरत भाई. हमारे ट्रस्टी किरण शर्मा जी हमारे साथ हैं. किरण जी, आप वेलकम करेंगे हमारे आज के गेस्ट को. सर नमस्कार. आपका हमारे मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन में सभी की तरफ से, हमारे सब ट्रस्टियों, सब उनके तरफ, ऑल द फोटोग्राफर की तरफ से आपका स्वागत है. Thank you so.
हमारे साथ में हमारे सेक्रेटरी अश्विन टांक जी है, वो भी अभी राजकोट में है। राजकोट से आपको वेलकम करेंगे सर। अश्विन जी। राजेश भाई, मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मी एंड मेरे सभी आए हुए आज के मेहमान, मेरे मेंबर्स आर रियली वेटिंग फॉर योर बिजनेस टिप्स फ्रॉम योर साइड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल टेल अतुल भाई के उनका स्टार्ट किया जाए सेशन। यस राजेश जी, फ्लाइट इज योर। Thank you so much, friends. Thank you, Atul bhai, Atul Video, Atul Joshi is a very dear friend. I saw even Nelson Patel being there on the group. यस Nelson सर, Patel मेरा बचपन का दोस्त है। क्या इनफैक्ट बात उसी इलाके से मैं आया हूँ। So nice to see everybody and I am sure ये जो माहौल है इसके बारे में डरने से कुछ होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी हम लोग को सबको इन चीज का सामना करना जरूरी है। हम आइडिएट कैसे कर सकते हैं, हम एक अलग विचार कैसे कर सकते हैं और हम आने वाले समय की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये बातें बहुत अहमियत रखेंगी। और सबसे अहम बात ये है कि आज तक आप जितने लोगों ने जितने कस्टमर्स को हैंडल किया है, कि 5 साल से लेके 15 साल से लेके 30 साल 35 साल, मेरे ख्याल से काफी सीनियर फोटोग्राफर्स भी नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अतुल भाई जो मेरे ख्याल से 25-30 साल से फोटोग्राफी के क्षेत्र में है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि दिस इज द टाइम टू पॉज एंड रिकलेक्ट ऑल योर क्लाइंट्स, गेट कनेक्टेड टू ऑल योर क्लाइंट्स एंड स्टार्ट सर्विंग देम इवन इन दिस सिनारियो। ये समय पे जो वेंडर अपने कस्टमर को सर्विस देगा, वो वेंडर उस कस्टमर के जहन में, उसके दिल में और उसके परिवार का हिस्सा बन के रह जाएगा। मैं जानता हूं, समझता हूं और देख भी रहा हूं कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल समस्याएं आएंगी। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो जहां पर आपके पास कई लोग जॉब करते हैं या आपने कई प्रेमाइसेस भाड़े पर लेके रखी हैं, तो उसका भाड़ा चुकाना, लाइट बिल चुकाना, गवर्नमेंट के टैक्सेस चुकाना, उसके अलावा लोगों को सैलरीज देना, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है सर पर। लेकिन ये प्लानिंग के जरिए बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है और जो हम सभी लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। अब जो गेम है ये प्लानिंग का है। कल तक हमारे पास जब बिजनेस आता था तो हम लोग बिना सोचे उसके पीछे एग्जीक्यूट करने के पीछे हम लग जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपका इनकम रुक गया है लेकिन आपके खर्चे रुके नहीं है। योर एक्सपेंसेस आर स्टिल ऑन। और उसमें सबसे इमोशनल खर्चा अगर कोई है तो वो हमारे टीम का सैलरी, वो है हमारे टीम के पगार। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो कहलाता है जो इस समय में किस प्रकार के निर्णय लेगा उससे उसका चरित्र डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इस समय में हम हमारे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं उसके ऊपर पूरे दुनिया की नजर रहेगी, हमारे कस्टमर की नजर रहेगी, सरकार की नजर रहेगी और हमारे लोग भी ये देखना चाहेंगे कि हम उनके साथ इस समय में क्या करना पसंद करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। मैं ये बात भी जानता हूं कि जो बिजनेसमैन लोग हैं इनके ऊपर हमेशा बिजनेस लोन्स होते हैं, हमेशा और भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको उनको पार पाड़ना बहुत जरूरी है और इस समय में भी उनको वही करना पड़ेगा। ये परिस्थिति से डर के चलने वाला नहीं है क्योंकि उससे कोई चीज बदलने वाली नहीं है और हमारी जो ताकत है वो यहाँ पर है। अगर हमने इस सिचुएशन, कोई भी जीवन में सिचुएशन ऐसे होती है कि या तो हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं या तो ये सिचुएशन हमें कंट्रोल करेगा। अगर सिचुएशन ने हमको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो वो हमारे हार की पहली सीढ़ी होगी। अगर हमने सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो हमारे अगले जीत की ये नींव होगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 15-17 दिनों से हम लोग कैद में हैं, जिसको हम कहते हैं हाउस अरेस्ट, और विश्व के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर बिना कोई जंग के पूरा माहौल जंग जैसा हो गया है। जब भी कोई जंग हुई है इसके पहले भी, वेदर इट वाज वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, सिर्फ वही देशों में तनाव पैदा हुआ था जो देश उस वर्ल्ड वॉर में शामिल थे। ये पहला ऐसा वर्ल्ड वॉर है जहां पर पूरा विश्व एक देश बन गया है। ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई भाषा है, ना कोई कल्चर है, ना कोई कुछ है, सब एक ही समान के रिस्क लेवल पर आ गए हैं और आज कसौटी जिंदा रहने पर आ गई है। आज अगर हम जिंदा बचेंगे तो हम आगे चलकर लड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति आ गई है। सो वी हैव टू बी एट होम, वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू लिसन टू द गवर्नमेंट्स एंड वी हैव टू बी स्टेइंग अवे फ्रॉम फेक न्यूज। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि हम सब उद्योगपति हैं, हम सब बिजनेस करते हैं। हमारे बिजनेस की जीवन को भी हम लोग कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और रख सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और उसके लिए शांत मन, ठंडा दिमाग और अच्छे विचार, ये 3 चीजों की बहुत जरूरत है। हम जैसा सोचेंगे रिजल्ट्स वैसे निकलेंगे।
एक चोट सबको लगने वाली है, वो टेम्पररी चोट है, और वो चोट है पैसे की। हम सभी लोगों को एज बिजनेसमैन, हम सभी लोगों को हमारे बैंक के खाते थोड़े खाली करने पड़ेंगे, हम सभी लोगों को थोड़ा सोना बेचना पड़ेगा, हम सभी लोगों को थोड़ा और कर्जा लेना पड़ेगा, ये सभी चीज करने पड़ेंगी। इसके बारे में डर कर नहीं चलने वाला है, इसलिए हमने बिजनेस का रास्ता अपनाया है। इसी बिजनेस ने हमको बनाया है जो आज हम है, और इसी बिजनेस को जिंदा रखना, जैसे हम हमारे जीवन को जिंदा रखना चाहते हैं बाय सोशल डिस्टेंसिंग, बाय कीपिंग आवरसेल्व्स इन द हाउस एंड बाय मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, उसी प्रकार से हमको हमारे बिजनेस को जिंदा रखने के लिए विचार करना जरूरी है, ताकत लगाना जरूरी है, और इसके बारे में सोचकर प्लानिंग करना जरूरी है। सबसे अहम बात यह बताना चाहूंगा कि इस समय में जो व्यक्ति या जो बिजनेसमैन ग्रुप के साथ नहीं रहेगा, अगर आप कोई ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो आपका दम अकेले में घुट जाएगा। लेकिन परंतु अगर हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जैसा मुंबई फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, तो हम हमारा दुख सुख बांट सकते हैं, हम हमारी स्ट्रैटेजीज बांट सकते हैं, हम हमारी आइडियाज बांट सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब विश्व पे संकट प्रकट हुआ है, तब तक पूरी दुनिया एक छोटा परिवार बन के रह गई है। लोगों को एक दूसरों के ऊपर विश्वास बढ़ा हुआ है, और लोग इकट्ठा मिलकर काम करना पसंद करते हैं। मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये जो कठिनाई का समय है, ये जो नेगेटिव माहौल है, इस नेगेटिव में पॉजिटिविटी एक सबसे बड़ी जो है, ये है हम सब लोग इकट्ठा आ गए, हम एक साथ आ गए। हमारे वेंडर्स हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ है। हम क्या बर्ताव करेंगे, हम क्या बातें करेंगे, हम कैसे लोगों को ट्रीट करेंगे, इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक ध्यान रहने वाला है पूरे विश्व का। सो वी हैव टू बिहेव इन द बेस्ट मैनर, और जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं, तो अगर मैं एंथुसियास्टिक हूं तो मेरे लोग एंथुसियास्टिक रहेंगे। ये समय वो समय है जहां पर हम हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं, हम हमारे कस्टमर्स के साथ संबंध इंप्रूव कर सकते हैं, और हम हमारे एम्प्लॉयज के साथ संबंध इंप्रूव कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। मैं दोस्तों आपको ये बातें बताना चाहूंगा कि भगवान के दया से मुझे अनेक बिजनेस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो कुदरती तौर पे तजुर्बे के आधार पर मैं अच्छे सॉल्यूशंस दे सकता हूं। मैं अच्छे सॉल्यूशंस आपके पास सर आज लेकर भी जा सकता हूं। तो मैं ऐसे चाहूंगा कि कोई अगर आप मुझसे सवाल पूछो, तो मैं स्पेसिफिक उन सवालों का जवाब देकर अगर आपको खुश कर सकता हूं या आपके स्ट्रैटेजी में मदद कर सकता हूं, तो ज्यादा बेहतर होगा। I will expect you to have a dialogue rather than a monologue. खाली मैं बातें करने से अच्छा है कि आप भी बातें करें। एक चीज तय है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना है। दो प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस है। एक है तुरंत, जिसका सामना हम आज कर रहे हैं कि बिना इनकम का हमको खर्चा निभाना है, और दूसरी फाइनेंशियल समस्या यह है जब लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद आने वाला जो समय होगा उसको भी निपटाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों का समावेश ही आपका बिजनेस है, जैसे कि वेडिंग्स, पार्टीज, फंक्शंस, इवेंट्स, जहां पर से आपको मेजॉरिटी ऑफ आपका बिजनेस आता है। सो ये चीजों को थोड़ा समय लगने वाला है पटरी पर आने के लिए। तो उस समय तक आपके पास उतनी खुराक होनी चाहिए या उतनी पैसे की ताकत होनी चाहिए ताकि आप आपके धंधे को उतना जिंदा रख सकें। मैं ये भी बात जानता हूं कि आपके जो लोग आपके साथ जो काम करते हैं उनको खरी परिस्थिति का एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि हर बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का ओनर होता है वो वही ये समझता है कि सारा का सारा बिजनेस उसे लाना है और उसकी टीम उसको एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन आने वाले समय में लॉकडाउन होने के बाद हमारे साथ काम करने वाला हर एक व्यक्ति, हमारा हर एक कर्मचारी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बोल के काम करना जरूरी है, क्योंकि उसको ये समझना जरूरी है कि जो बिजनेस वो कंपनी के लिए लेकर आएगा उसी से ना केवल उसका चूल्हा जलेगा बट कंपनी के अंदर भी रेवेन्यू आएगा जिससे बाकी लोगों को बेनिफिट मिल सकेगा। सो एक साथ रहने का ये समय है, एक साथ काम करने का ये समय है, और मैं ऐसे समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास से कुछ ऐसी पॉलिसीज नक्की आएंगी जिसके वजह से आर्थिक सपोर्ट कोई ना कोई रूप में मिलने की संभावना है। सो देयर इज ऑलवेज लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल। हमें निराश नहीं होना है, हमें ताकत बढ़ानी है, हमें दिमाग बढ़ाना है, हमें ज्ञान बढ़ाना है, और हमें लोगों को साथ में लेकर चलना है, खासकर वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं।
So I'm open to asking, requesting you to ask me questions, and we can definitely answer that. We can go ahead. Yes, Atul bhai. नेल्सन जी कुछ आप दोस्त हैं राजेश जी के, क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राजेश जी का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं राजेश सर का स्टार्टिंग का स्ट्रगल देख चुका हूँ, तो मुझे मालूम है उन्होंने, और बहुत पैट्रियोटिक पर्सन है, इन्होंने मुंबई पुलिस को जो ट्रेनिंग की है मेरे ख्याल से बहुत प्रशंसनीय है, वेरी अप्रिशिएटेड दैट, कि बहुत पैट्रियोटिक पर्सन है। तो थैंक यू वेरी मच राजेश सर फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग फोटोग्राफर्स। आपके 5 मिनट्स के स्पीच में मेरा लास्ट 1 वीक का टेंशन था, लाइक आई वाज कंफ्यूज now what to do about my staff, like how do I pay them. I just messaged them day before yesterday that your salary of this month may be delayed, but I was confused what to do, but because within your 5 minutes of speech my mind is clear now what to do and what decisions to take, so I really thank you for that. Thank you, Nelson. Is there any way that I can be helpful? सबसे पहले तो मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि फोटोग्राफी की इंडस्ट्री अभी चेंज होगी। ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब फोटोग्राफी की इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के समय पर भी आप आपके कस्टमर्स की लिस्ट बनाइए, और जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज आज भी आपके साथ इस परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार हैं, उनको लेकर आप टेक्नोलॉजी के जरिए आपके क्लाइंट को कैसे सर्विस दे सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। अभी केवल फोटोग्राफी का स्किल के ऊपर निर्भर रह के नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी के मदद से जो फोटोग्राफी आपने आपके क्लाइंट्स के लिए की है, वो आप टेक्नोलॉजी के मदद से आप उनके लिए उसमें से कैसे नए क्रिएटिव्स बना सकते हो, उसके बारे में देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके अलावा आपके जो कस्टमर्स हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अगर उनकी आप कॉर्पोरेट फिल्म बना सकते हो, फ्रॉम द पास्ट फोटोग्राफ्स, फ्रॉम द पास्ट वीडियो शूट दैट यू हैव डन एंड फ्रॉम एनिमेशन, इसके जरिए अगर आप कुछ बनाकर आपके क्लाइंट को सर्व कर सकते हो तो दैट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, जो एल्बम्स आपने आपके क्लाइंट्स के लिए क्रिएट किए हैं, उसको क्लाउड पर डालकर आप आपके क्लाइंट्स को उसकी लिंक देकर अगर उसको एक्टिव करा सकते हो तो दैट इज अ गुड सर्विस दैट यू कैन डू फॉर योर क्लाइंट्स। इसके अलावा हाइजीनिक रूल्स मेंटेन करके अगर आप जो परिवार घर में बैठे हैं, इनके साथ अगर आप आज भी फोटोग्राफी के ऑर्डर्स अगर ले सकते हो तो सबसे बढ़िया है। आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रोटेक्शन, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर, प्रोटेक्टिव गियर पहनकर, अगर आप कस्टमर्स को ये ऑप्शन दे सकते हो कि ऐसे भी आप लॉकडाउन में घर पर बैठे हो, क्या हम लोग आकर आपके पूरे फैमिली की फोटोग्राफी कर सकते हैं? वी आर हाइजीनिक, वी आर सैनिटाइज, वी विल टेक प्रिकॉशन, और आपके ये साथ में रहने के समय को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं वीडियो के जरिए और फोटो के जरिए। सो दैट इज छोटा टिकट साइज का रेवेन्यू होगा, लेकिन आपकी सर्विस चालू रहेगी, आपका रिसोर्स एक्शन में रहेगा, और आपके जो फोटोग्राफर्स इस माहौल में भी काम करना पसंद करेंगे, उनका साथ लेकर आप आज भी आपके कस्टमर्स को सर्व कर सकेंगे। हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, मेरा खुद का तजुर्बा बताना चाहूंगा कि 25 मार्च से लेकर आज तक हर दिन हम लोग 16 घंटा काम कर रहे हैं। इतना बिजी तो हम तब भी नहीं थे जब लॉकडाउन नहीं था। जीवन को देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन दिनों में 25 मार्च से लेकर अब तक जो 12, 13, 14 दिन गए हैं, इन दिनों के अंदर हमने जो हमारे पिछले काम का जायजा जो किया है, जिसका कैलकुलेशन किया है, जो डेटा साथ में लाया है, जो टेक्नोलॉजी हमने इंप्लीमेंट की है, जो हमने हमारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, इसके वजह से जब लॉकडाउन खुलेगा तब हमारी कंपनी की ग्रोथ 10 गुना तेजी से आगे बढ़ेगी। और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि जब ये समय चेंज होगा, जब ये लॉकडाउन निकल जाएगा, उसके बाद जो व्यक्ति दिमाग से तंदुरुस्त है, जिसकी स्ट्रैटेजी तैयार है, वो रेस जीतेगा। तो ये समय है इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपनी ताकत का नियंत्रण करने का, अपने कमजोरी को समझ के लेने का, उस कमजोरी को हम दूर कैसे कर सकते हैं इसका प्लानिंग करना, और जीवन में भविष्य में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ऐसे परिस्थिति का अगले बार हम सामना कैसे कर सकता है, उसकी तैयारी आज करना जरूरी है। क्योंकि किसी ने भी 1 महीने पहले कोरोना के बारे में या कोविड-19 के बारे में ना सुना था ना समझा था, लेकिन ये ऐसी समस्या में हम सभी लोग फंस गए हैं कि हमारे भविष्य का प्रोटेक्शन हमें आज करना बहुत जरूरी है।
और ये हम एक दूसरे से बातें करके, एक दूसरे के पास से समझ के ही इसकी स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई मुझे सवाल पूछे, अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, तो मैं आपको सॉल्यूशंस देने के लिए मदद कर पाऊंगा। यस, थैंक यू राजेश जी, अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन आपने दिया। मैं हमारे किरण भाई जो यहाँ पर हैं, किरण भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ पूछना चाहते हैं वो। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, मैं मुंबई फोटोग्राफी एसोसिएशन का ट्रस्टी हूँ, और हम जब जो छोटे और भी ये स्टूडियो वाले हैं, अतुल भाई और सब, तो हमारे पास स्टाफ जास्ती है। तो स्टाफ की सैलरी निकालना, जैसे अभी पिछला महीना तो चला गया, उन्होंने 20 दिन काम किया, 10 दिन वो चलो हम लोग वो कर भी ले जो कुछ है। अब ये महीने का जैसा बोल रहा है 14 तारीख को चालू होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं, फिर अगला ये महीना हमारा जो रहेगा, तो इतने हमारे पास स्टाफ है, इनकी सैलरीज, काम तो कुछ है नहीं, कुछ आवक है ही नहीं, तो इनकम किस हिसाब से पे करें, क्या करना चाहिए इनके लिए, एक मैं समझना आपके जरिए चाहता हूँ, मैं और हमारे जो स्टूडियोज ओनर्स हैं सब समझना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रायोरिटी की लिस्ट बनानी चाहिए कि हमारे पास अगर 100 रुपए जेब में है, तो ये 100 रुपए की प्रायोरिटी हमारे पास क्या चीजें होनी वाली। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो आपका खुद का परिवार है जी, और सबसे दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आपका एक्सटेंडेड परिवार, जो है आपका वर्क फोर्स। ये वर्क फोर्स के आधार है अपना खुद का पर्सनल परिवार आज जहां पहुंचा है वहां पर पहुंचा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी हर खर्चे को आप पेंडिंग रख सकते हो, आप भाड़े को पेंडिंग रख सकते हो, आप गवर्नमेंट के टैक्सेस को पेंडिंग रख सकते हो, आप लोन के रिपेमेंट को पेंडिंग रख सकते हो, क्योंकि ये पूरा विश्व का प्रॉब्लम है, ये आपका और हमारा वैयक्तिक प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ 2 लोगों को आज के समय में संभालना बहुत जरूरी है, वो है हमारा खुद का पर्सनल परिवार और दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परिवार। सो एम्प्लॉइज को चोट नहीं लगनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे अनेक एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं, बिजनेसमैन को जानता हूं, जिन्होंने क्या क्या बेचकर अपने लोगों को साथ देना है और सपोर्ट करना है, इसकी लिस्ट बना चुके हैं। हमने इसी बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए हैं। जाहिर सी बात है किसी के बैंक के खाते में तो ये पैसे होते नहीं है, हम उसके जेवर बना लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और लोन ले लेते हैं हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। हमें हमारे सारे रिलेशनशिप्स और हमारे सारे रिसोर्सेज वापर के हमको हमारे लोगों को संभालना जरूरी है। अभी समझो ये महीने का पगार तो हमको देना जायज है, सरकार ने भी ये नियम बनाया है कि आप आपके कोई भी एम्प्लॉय का पगार नहीं काट सकते हो, ये सरकार ने नियम बनाया है। बीएमसी ने ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो अप करना शुरू कर दिया है कि आपने आपके लोगों को पगार दिया या नहीं दिया। दूसरी बात, अगर लोग अपने लोगों को पगार नहीं देंगे तो एक बहुत सामाजिक समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा नहीं पहुंचा तो हमसे वो मांगकर पैसा नहीं लेंगे, वो हमसे छीनकर पैसा लेंगे। तो ये सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सरकार अपील कर रही है कि अपने अपने लोगों को अच्छे तरीके से संभालो। इसमें सबसे बड़ी चोट लगने वाली है बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेसमैन के पास प्रोविजन होता नहीं है, वो रोज की जीवन की कश्मकश में लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है सारे बिजनेसमैन को थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन यही कसौटी का समय है और इसी समय हमें हमारे लोगों के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई कारण से ये लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हो जाता है तो शायद इस तरीके का कोऑपरेशन कर सकते हैं कि अगले महीने के लिए हम 100 रुपया नहीं देंगे सैलरी, हम 75 रुपया सैलरी देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आज अगर आप पूरा सैलरी देते हो तो अगले महीने में आपका एम्प्लॉय भी आपकी बात समझ लेगा। अगर और एक महीना एक्सटेंड होता है, जो नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कोई कारण से ये अगर हो जाती है बात, तो आपको तीसरे महीने में आधा पगार देना है, लेकिन आधा पगार देने की जिम्मेदारी हमारी तब तक रहेगी जब तक ये परिस्थिति चेंज होगी नहीं है, और तब तक उतना समय जाएगा नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार तैयारी कर रही है, लोगों के बिजनेसेस में, लोगों के घरों में, लोगों के खातों में पैसा कैसा पहुंचाया जाए, ये आज सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। और मैं ऐसे मानता हूं कि हमारी सरकार हमें निराश नहीं करेगी, ये सरकार हमको हमारा साथ देगी। विश्व की हर सरकार अपने लोगों का आज साथ दे रही है और उसी तरीके से लोग नियंत्रण में रहेंगे और शांति में रहेंगे। थैंक यू राजेश जी। हमारे सुनील शर्मा जी हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। श्योर सर, एक जो आपने डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्ट्रेटजी कैसे हम करें आगे,
मेरा ये मानना है कि जैसे ये पुश और पुल की जो हमारी जो बात चलती है कि हमारे पास हम पुश करते हैं या पुल करें, कैसा जो स्ट्रेटेजी हमारे पास लोग कैसे आए, हम पुश करते रहते हैं लेकिन पुल नहीं कर पाते हैं। और जो हमारा जो सिचुएशन है, दूसरा एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली हमारा जो सीजन है, हमको ऐसा लग रहा है कि वी आर गोइंग टू वर्क आफ्टर नवंबर मे बी, क्योंकि गैदरिंग्स ही कैंसिल है, तो हमारा जो भी काम है वो गैदरिंग्स में ही होता है। तो ये है कि स्ट्रेटेजी क्या हो, एंड ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू सफर टिल नवंबर और दिसंबर। ओके, तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि फोटोग्राफी जो है ना, ये एक एफर्ट बेस्ड एक्टिविटी है, एफर्ट बेस्ड, जिसमें आप फिजिकल मेहनत करते हो और उसका आप दाम लेते हो। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, मतलब मेहनत वाले फोटोग्राफी का आप समझो 100 रुपया लेते हो, और थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो 150 रुपया लेते हो। अभी हम लोगों को, सब लोग को ये सोचना जरूरी है कि 100 रुपए के एफर्ट में हम 3000 रुपए कैसे चार्ज कर सके, ताकि 30 कस्टमर का पैसा हम एक कस्टमर को कैसे बिलिंग कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन का जमाना अभी आने वाला है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब यह है कि सिर्फ फोटोग्राफी देके चलेगा नहीं, तो आपको माहौल बना के कॉन्सेप्ट बेचने की नौबत आएगी। कॉर्पोरेट फिल्म्स और लोगों का सोशल मीडिया का एक्सपोजर, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हर इंसान चाहता है कि उसके वीडियोस बने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो अभी आपको ये कस्टमर बेस बनाना चाहिए जहां पर आपका एक कस्टमर, जनरली एक कस्टमर शादी तो एक ही बार करेगा, जिसका बिलिंग आप लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कस्टमर को 100 बार आपको पे करे, ऐसा कस्टमर बना सकते हो, तो ऐसे कस्टमर के बारे में सोचना जरूरी है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि इतने सारे लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो फोटोज बनाना चाहते हैं, उन तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको इतने छोटे बिलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अभी छोटी बट मल्टीपल टाइप्स के बिलिंग का बिजनेस का निर्माण होना शुरू होने वाला है। आप सभी लोग अगर कंटेंट में उस्ताद बन गए, मतलब आपको डायरेक्शन आना चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, आपको एडिटिंग आना चाहिए, और आपको कंटेंट क्रिएट करके देने को आना चाहिए। अगर किसी की एनिवर्सरी आ रही है तो अभी आपको उसका शोरील बना के उसको देना जरूरी है, जिसका आप उसको 2 लाख रुपया चार्ज करो तो भी वो चुकाएगा। मतलब कम कस्टमर्स और उनके पास रिपीट बिलिंग कैसे हो सकती है, इसके बारे में सोचना शुरू करना जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसमैन है, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं। अगर कल अतुल वीडियो के अतुल जोशी साहब अगर मुझे कहते हैं कि राजेश जी आपके हम लोग है ना 100 वीडियोस बनाते हैं, ऐसे भी लॉकडाउन है, आपके हम 100 मोटिवेशनल वीडियोस बना के देते हैं, आपको हम पर वीडियो का खाली 5000 रुपया चार्ज करेंगे, लेकिन उस 5000 रुपये में हम आपके कंपनी को प्रोजेक्ट करेंगे। ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो, फेसबुक पे यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे यूज कर सकते हो, और ये करने से आपको इनकम जनरेट होती है। मेरे फोटोग्राफर दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा कि एक फोटोग्राफर का जो प्रोफेशन है, ये कोई भी व्यक्ति के खर्चे से जुड़ा हुआ है और उसके खुशी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आप एक खर्च करने वाले व्यक्ति के इनकम के साथ जुड़ो, तो ये आप इनकम के साथ कैसे जुड़ सकते हो? हर बिजनेसमैन के कस्टमर होते हैं, उस कस्टमर के अगर आप जाकर टेस्टिमोनियल शूट करते हो, जिससे आपके कस्टमर का धंधा बढ़ता है, तो आप आपके कस्टमर के इनकम के भागीदार बनते हो। तो वो कस्टमर आपको बार बार पैसे देने से जरा भी संकोच नहीं करेगा। तो एक कस्टमर के पास से एक जीवन में 5 बार काम करने के बजाय एक कस्टमर से एक जीवन में आप 500 बार कैसे काम कर सकते हो, इसका गणित करना, इसका प्लानिंग करना जरूरी है। यू नीड टू बिकम मोर क्रिएटिव। अभी मैं एक समझ सकता हूं कि समय का एक बंधन होता है, उम्र का एक बंधन होता है, और अपने वैयक्तिक इंटरेस्ट का एक बंधन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा समय है जहां पर एक साथ मिलकर अगर आप काम कर सको तो बढ़िया काम रहेगा। जैसे आप लोगों में जो सबसे बेस्ट एडिट कर सकता है, उसको आप एडिटर बनाइए। आप लोगों में सबसे अच्छी जो कहानी, जो कंटेंट राइटिंग कर सकता है, उसको कंटेंट राइटर बनाइए। आप सब में जो सबसे बेस्ट वीडियोग्राफी कर सकता है, उसको वीडियोग्राफर बनाइए। ऐसे कोलैबोरेटिव एफर्ट करने के बाद, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि पावर सर्कल, कि 5 लोग मिलकर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद उसके इनकम को हम आपस में कैसे बांट सकते हैं, इसके बारे में अगर आप गणित करना चालू करोगे तो आने वाले समय में आप जितना रेगुलर टाइम पे कमा सकते हो, उससे ज्यादा आने वाले समय के बाद आप पैसा बना पाओगे। एक्स्ट्रा सर्विसेज देना, एक्स्ट्रा तरीके का काम करना, ये आने वाले समय में बहुत मायने रखेगा। सर हर इंसान को अपने आप को पिक्चर में देखना अच्छा लगता है,
हर इंसान को अपने आप को वीडियो पे देखना अच्छा लगता है। अभी आपकी कसौटी ये रहेगी कि आप उसको कितना अच्छा दिखा सकते हो, आप उसको कितना अच्छा कंटेंट दे सकते हो। आप लोगों को वीडियो फिल्म बनाने का कारण दीजिए। आप अभी जैसे अतुल वीडियो ने तनुजन एसोसिएट्स के लिए उसके कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल बनाए हैं, बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल बनाए हैं। अभी हमारे बिजनेस ग्रुप के अंदर 10 लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग को अतुल वीडियो के पास से हमारे कस्टमर के टेस्टिमोनियल बनवाने हैं। आज के तारीख में लॉकडाउन होने की वजह से आप किसी इंसान को मिल नहीं सकते हो, तो आप जूम के जरिए वीडियो कैसे बना सकते हो, जूम के जरिए शूट करने के बाद उसको एडिट कैसे कर सकते हो और उसका बिलिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। 5 एग्जाम्पल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे दीजिए। एक बार उनको चखने दीजिए कि आपके पास टैलेंट क्या है, कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं जूम वीडियो के जरिए आपका वीडियो बना सकता हूं, उसको एडिट कर सकता हूं और उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से शोकेस कर सकता हूं, तो आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो सकते हैं। सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिव एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग वेरी वेरी इनोवेटिव। सर थैंक यू। आप ये अपने चार्ट में ऑलरेडी हमारे साथ हमारे मेहमान भी आज आए हुए हैं, तो मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से मैं आनंदिता, संदीप जी, योगेश जी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पर। और हमारे भरत कोया जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो भरत जी आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? श्योर। मेरे जो भी क्वेश्चन थे सर ने इतने में सबका आंसर दे दिया। अभी हम लोग जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 10 दिन के बाद ही हम लोग सोच रहे थे, मेरे तो आंख में पानी आ गया था कि भाई अपने स्टाफ का क्या होगा, अपन तो गुजार लेंगे, लेकिन अपने जो स्टाफ अपने पे निर्भर करता है, जिसका चूल्हा अपने पगार से उसके घर पे चलता है, अगर ये ज्यादा लंबा चला तो अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए। फिर भी हम लोग ने तो निश्चय कर लिया था, जैसे सर आपने बोला कि ये महीने का पगार तो पूरा सबको मिल ही जाएगा। मैंने सबको मैसेज भी कर लिया, हम लोग का ग्रुप है, ऑफिस का भी ग्रुप है, भाई आप डोंट वरी, आपकी सबकी सैलरी मिल जाएगी सबको आपको। और नेक्स्ट मंथ का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे, मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फुल सैलरी आपको मिले। अगर फंड्स आ गए सबसे पास, सब क्लाइंट, हमारे क्लाइंट बहुत है, सब क्लाइंट को अभी फोन करते बहाना सबके पास है, अरे अभी फंड्स की जरूरत, सब अपनी सेफ्टी देखते हैं, कोई पैसा भेजता नहीं है। ऑनलाइन भी अभी तो सुविधा होगी, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ बहाना है। तो मैंने देखो बेटा ये प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सैलरी जब तक ये चलता रहे हम आपको दें। बस ये मेरी मन की इच्छा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उतनी शक्ति दे कि हम हमारा स्टाफ को खुश रख सके। थैंक यू सर। बहुत अच्छे विचार है आपके, जैसे आपके विचार है वैसे आपका भविष्य रहेगा, ये मैं आपको गारंटी बताता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो व्यवसाय था एक जमाने में, सबसे बड़ा व्यवसाय मेरा एजुकेशन का था। 2000 साल में जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ, जब ट्विन टावर का डिमोलिशन हुआ, हवाई जहाज ने उड़ाकर जब भी वो आतंकवादी हमला हुआ था, तो मुझे क्लियरली याद है, मेरी तब नई शादी हुई थी, 99 में मेरी शादी हुई थी। कंप्यूटर एजुकेशन में होने के वजह से सबसे बड़ा धक्का जो लगा था वो हमारे कंप्यूटर एजुकेशन की इंडस्ट्री को लगा था, और हम लोग सब त्रस्त हो गए क्योंकि सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज, बच्चे पढ़ना चाहते थे अमेरिका जाने के लिए, वो सारी इंक्वायरीज हमारी बंद हो गई। हमारे एडमिशन, अगर महीने में एक सेंटर पर 50 एडमिशन हो रहे थे तो वो एडमिशन आगे 2 एडमिशन 3 एडमिशन पर, और हम लोग इतने टेंशन में आ गए, मैं और मेरी वाइफ। तो हमने क्या किया, एक शाम को हम बैठे, हम लोग महिंद्रा गार्डन्स नाम के प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स में रहते थे इन गोरेगांव, और मैंने और मेरी बीवी ने साथ में बैठ के शांति से, जरा भी टेंशन नहीं, भगवान की दया से तब मेरे पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हुआ करती थी, मैंने बहुत सारे मेरे बीवी के लिए गहने भी बना चुका था। हमने शांति से, हमने एक ही तय किया, एक भी स्टाफ को निकालेंगे नहीं, एक भी सेंटर कम करेंगे नहीं। हम लोग ने लिस्ट बनाया कि पहला मैं क्या बेचूंगा, दूसरा मैं क्या बेचूंगा, तीसरा मैं क्या बेचूंगा। ज्वेलरी के अंदर मैंने लिस्ट बनाया कि पहले ये ज्वेलरी बेचेंगे, फिर ये ज्वेलरी बेचेंगे, फिर ये ज्वेलरी बेचेंगे। और आप ये इस बात का यकीन नहीं मानोगे, भगवान के दया से मुझे एक भी चीज बेचने की नौबत नहीं आई, क्योंकि जब मेरे स्टाफ को पता चला कि हमारे सर ऐसा करने वाले हैं, तो हकीकत में बताना चाहूंगा कि मेरे स्टाफ में भूत आ गया काम करने का। हम लोगों ने इतना काम करना शुरू किया, मेरे स्टाफ और मैं, हम लोग घर घर जाकर लोगों को रिक्वेस्ट करने लगे कि आप कंप्यूटर सीखो, इससे आपका भविष्य बड़ा होगा और हिंदुस्तान में भी आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी। और आप मानोगे नहीं, आने वाले 3 सालों में और 3 महीनों में और 6 महीनों में जितना रेवेन्यू मेरे लोगों ने और मैंने मिलकर जमा किया, उससे हमारी ग्रोथ हुई।
ना हमको 10 ग्राम सोना बेचना पड़ा, ना हमको कोई गाड़ी बेचनी पड़ी, ना हमको कोई क्लास बंद करना पड़ा, लेकिन मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो गई क्योंकि मेरे टीम ने, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे विचारों को सलाम किया और उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग सब मिलकर इस परिस्थिति को चेंज कर देंगे। वेरी नाइस सर। आज हाँ बोलिए सर, बोलिए, सॉरी। और आज फिर से वैसा ही समय आ गया है, लेकिन कुछ नहीं होगा, हम लोग सब इसमें से निकल जाएंगे, हम लोग सब चिंता थी, अच्छे से निकल जाएंगे। और इतना ध्यान में रखना कि ये समय में अगर आपने आपके स्टाफ को पैसा समय पे दिया है ना, एक दिन पहले दीजिए, तो ये स्टाफ आपके लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और वही ताकत की हमको जरूरत है। गुड। मैं मेरी चिंता थी तो मैं, अतुल भाई 2 मिनट प्लीज। अतुल भाई रोहित बोल सकता है? एक मिनट रोहित भाई, 1 मिनट। हाँ भरत भाई कंप्लीट कीजिए। सर मेरी ये स्टाफ की चिंता ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, मैंने मेरे ऑफिस के जो 2 मास्टर एडिटिंग मशीन जो थे वो मैंने रातों रात अपने घर पे लाया। मेरा जो डाइनिंग टेबल था वो मेरे बेडरूम में शिफ्ट किया, दोनों कंप्यूटर उधर रखे, और वहां से, अभी स्टाफ है नहीं, एडिटिंग का काम बहुत पेंडिंग है, तो स्टाफ के भरोसे रह नहीं सकते, तो मैं और मेरा बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा हम लोग ने गूगल ड्राइव पे भी ज्यादा स्पेस ले ली और नेट स्पीड हम लोग ने ज्यादा 100 MBPS के ले ला। अभी हम लोग रात को एडिट करके क्लाइंट को बोल देते हैं भाई हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं और आप देख लीजिए, और चाहो तो आप फंड्स हमारे को अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। हम अगर स्टाफ के भरोसे रहते, स्टाफ आएगा काम करेगा, तब तक तो वो टाइम चला जाएगा। वो शादी का आपको मालूम है गर्मी में पैसा निकल जाता है। yes, हम लोग ने, मैं और मेरा बेटा, हम लोग रात को भी जाग के थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और सुबह सीधा क्लाइंट को अपलोड लिंक भेज देते, रात को सोने के पहले अपलोड करने रख देते, सुबह लिंक रेडी हो जाती है और उनको भेज देते, सर ये हो गया, अब आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा फंड्स आप ट्रांसफर कर दीजिए। मैं भी समझता हूँ आपको भी अभी किल्लत होगी पैसे की, लेकिन जितना हो सके आप प्लीज मुझे ट्रांसफर 10,000 20,000 जो भी आप कर सकते करिए, तो मेरा भी इधर मेरा स्टाफ का खर्चा निकले। एंड इट हैज हेल्प्ड मी वेरी लॉट सर। फैंटास्टिक। आपसे बात करके तो मैं फुल डबल चार्ज हो गया हूँ सर। रोहित जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? रोहित जी। हाँ जी राजेश जी बोलिए साहब। आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ और थोड़ी मजाक बीच में ला रहा हूँ कि आपने बताया कि मेरी नई शादी में ऐसा प्रॉब्लम आया था और ऐसा हुआ, तो अभी पुरानी शादी में क्या है? नहीं पुरानी एक ही है सर। थैंक यू। नहीं यानी दोनों माहौल बदल गए हैं ना। अभी पुरानी शादी यानी अभी का जो वक्त चल रहा है वो पुरानी शादी, तो इसमें एडजस्ट नहीं। अभी तो ये समय में देखिए, हम तो 2001 में सबक सीख चुके हैं कि अगर ऐसा हादसा अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास तैयारी क्या है। तो आज इस माहौल के अंदर मेरी तैयारी पूरी है। हमारे कोई भी स्टाफ की ना नौकरी जाएगी ना पगार कटेगा, सबको पगार 2 दिन पहले मिलेगा, जो हमने 2 दिन पहले चुका भी दिया है। एक भी वेंडर का पैसा रोका नहीं है, एक भी एक्सक्यूज दिया नहीं है। जितने लोगों को मेरी प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है सबको मैंने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका धंधा बढ़िया चलेगा। ये माहौल के अंदर आई एम नॉट सरप्राइज, आई वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन से हम लोग दुनिया को जीत सकते हैं, ये माहौल की हमारी तैयारी है। और अभी वो माहौल मेरे लिए इससे भी ज्यादा डेंजरस था, लेकिन ये माहौल का हमारे पास तैयारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी बात कैसे है कि मेरी बीवी ने फट से मुझे यही बात बताया, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसी दिन बताया कि राजेश ऐसा नहीं लगता ये तो वैसा वाला ही माहौल हो गया। तो हम लोग ने दोनों ने स्माइल किया, हमने बोला कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। गुड सर। जितेंद्र सेठ कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर। या राजेश जी, वेरी नाइस टिप्स इज गिवन बाय यू। बहुत ही बढ़िया बात आपने किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे आपको ये पूछना है, आपने एम्प्लॉयर के लिए तो सब कुछ बताया कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए उसके स्टाफ के लिए। हमारा जो ये फोटोग्राफी बिजनेस जो चलता है उसके अंदर समझो कि आज मैंने ऑर्डर लिया है, तो मेरे साथ में मेरे सभी भाइयों जो आते हैं एक्सपोजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दे आर नॉट हैविंग देयर ओन पार्टी, लेकिन they are working for us and we are paying them. Now there is no shooting at all, as you know it very well, and very rightly said by Mr. Sunil Sharma, our president, that till October we will not have any movement of our camera.
आपने दूसरी चीज बताई, वो बात सही है। जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके पास कैमरा है, जिसके पास डायरेक्ट क्लाइंट है, वो सब अपने यहाँ वो कर सकेंगे कि उसका क्लाइंट का कांटेक्ट करके अपना गुजारा कर सकेंगे। लेकिन जो हमारे भाई लोग, हमारे जो मित्र है, जो हमारे लिए काम करते हैं, जिसको हम एक्सपोजिंग वाले बोलते हैं, वो एक्सपोजिंग वाले के लिए तो कोई ऑल्टरनेट रहता नहीं है। तो ये जो सिलेक्ट सीजन है, माने कि ये जो 6 महीना आ गया, 3 महीना जैसे हमारा रहता है, उसकी बदली में कभी खुलेगा एग्जैक्टली पूरा फुल स्ट्रेंथ में, वो तो किसी को पता नहीं है। तो ये बीच में ये जो पीरियड है, उसके अंदर फोटोग्राफी को छोड़ के उसके अलावा कौन सा ऐसा बिजनेस ये जो एक्सपोजिंग वाले है या छोटा एम्प्लॉयर है, उसको करना चाहिए। छोटे एम्प्लॉयर को बड़े एम्प्लॉयर के साथ जुड़ जाना चाहिए और मिलके साथ में काम करना चाहिए। ही शुड बिकम पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। कैसा होता है, जब भी ऐसा माहौल आता है तो जिसके पास छोटा सेटअप होता है उसने बड़े वाले सेटअप के साथ जुड़ जाना चाहिए, एंड इट शुड बिकम एन एक्सटेंशन आर्म ऑफ ब्रिंगिंग बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बन गए, मैं रियल एस्टेट सेक्टर में हूं इसलिए बताना चाहूंगा, जब कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बन गए अच्छे समय में, जब बुरा समय आ गया तो वापस कॉन्ट्रैक्टर बन गए। साइकिल, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री का जो नॉलेज जो फोटोग्राफर इंडस्ट्री के आदमी को ही मिलता है। आप लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिसका एस्टेब्लिशमेंट बड़ा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका एस्टेब्लिशमेंट छोटा होगा। ये छोटे एस्टेब्लिशमेंट को बड़े एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी के लिए जुड़ना चाहिए, और जो रेवेन्यू वो लाकर साथ में बटा सकते हैं उसके अंदर हिस्सा लेकर जाना चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटाना चाहिए, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए और प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए। यही फॉर्मूला चलेगा। बढ़िया सर, आपने अच्छा आंसर दिया। मैं भरत दरोड़ जी से कहूंगा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो। भरत भाई बोलिए। हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरह आपने। आवाज बंद हो गया। भरत भाई म्यूट वेट म्यूट कीजिए। हाँ पूछिए। सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भरत भाई। हाँ, जो सुनील शर्मा ने बोला था वही बात थी, क्योंकि ले दे के वहां पे आते हैं कि आगे जाके हमारे पास जो भी काम है ओपन फील्ड में काम करना है, तो घर पे बैठ के हम लोग और क्या कर सकते हैं, जिसका आपने बहुत अच्छी तरह से अभी तक एग्जाम्पल आपने बताया कि बहुत सारे काम ऐसे है जो हम घर पे बैठ के भी उनके वीडियोस बना सकते हैं। तो उसी बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सेम सवाल का जवाब आपसे मिल गया। तो बहुत बढ़िया। इतना काम बढ़ गया है, वीडियोग्राफी का और फोटोग्राफी का काम इतना बढ़ गया है कि YouTube और सोशल मीडिया भरकर है। अभी टिकटॉक जैसे अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, मैंने 5 दिन पहले डाउनलोड किया, आई एम एंजॉयिंग इट। 30 सेकंड्स के वीडियोस हैं। बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनीज बन गई हैं जो एक कैमरामैन आ जाता है और आपका टिकटॉक का वीडियो क्रिएट करता है 30 सेकंड का, और 5,000 से लेके 25,000 रुपया चार्ज करता है 30 सेकंड के वीडियो का। 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपया चार्ज करता है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन की कला है, स्क्रिप्टिंग की कला है, एडिटिंग की कला है, मिक्सिंग की कला है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है फोटोग्राफी के क्षेत्र में, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आपको कस्टमर एक बार ढूंढना है, आपको कस्टमर को एक बार अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस देना है, बाकी जिंदगी आपके पीछे पीछे भागेगा और आपके पास से काम करवा कर लेते जाएगा, क्योंकि आपके 25,000 रुपए के बिलिंग में उसको जो फेम मिल रहा है, उसको जो विजिबिलिटी मिल रही है, वो करोड़ों रुपए की है। बहुत काम है फोटोग्राफी के क्षेत्र में। पूरी दुनिया, कोई भी क्षेत्र में रहने दो, सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं फोटो के जरिए और वीडियो के जरिए। आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज लेना जरूरी है, आप लोगों को इसके बारे में एजुकेशन लेना जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो दो ही तो चीज है सोशल मीडिया पे, एक है फोटोग्राफी, दूसरा है वीडियोग्राफी, और क्या है। और जितने लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इस प्रकार के जीवन में, तो इस तरीके के वजह से आप लोगों को सोशल मीडिया के साथ शादी कर लेनी चाहिए। एवरीबडी शुड हैव कस्टमर्स हु आर ऑन सोशल मीडिया। और अभी आपको 500 कस्टमर की जरूरत नहीं है, आपको 50 कस्टमर्स चाहिए जो आपको 5,000 बार ऑर्डर देंगे। थैंक यू सर। हम लोग भी दूसरी शादी कर लेंगे, नई शादी करेंगे। सर सोशल मीडिया का आपने बोला, सर सोशल मीडिया का आपने बोला, मेरे दिमाग में एक आदमी आता है निखिल मुंबईकर, आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में देखा होगा। तो यूट्यूब चैनल चलाता है वो निखिल मुंबईकर। वो रोडीज टाइप है, बाइक लेके किधर भी निकल जाता है।
and now he is earning lakhs of rupees. यस यस, वो एक ही आइडिया अरे है, लोग हेलमेट पे गोप्रो लगा देगा वो। आप सारे फोटोग्राफर एक्सपर्ट्स हो फोटोग्राफी में, कैमरा मैनेज करने में, टेक्निकल डिटेल्स में। लोग आज के तारीख में एप्पल के फोन के ऊपर पौना घंटे का पिक्चर बना रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं कॉलेज के बच्चे, और अवार्ड भी मिल रहे हैं उनको, और उनको अवार्ड भी मिल रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है। और आज के तारीख में वो लोग को लाखों रुपया दिया जाता है दूसरे के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए, yes. जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, yes, yes. जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। अभी yes. आप लोगों को एक्सपर्टीज लानी है कंटेंट में। एक बात समझ लीजिए, अभी आप फोटोग्राफी के धंधे में नहीं हो, अभी आप वीडियोग्राफी के धंधे में नहीं हो, अभी आप कंटेंट क्रिएशन के धंधे में हो। क्लाइंट के धंधे को समझना और उस धंधे को किस रूप में आप पेश कर सकते हो वीडियो और फोटोग्राफ के जरिए, ये आपका इंटेलिजेंट आउटपुट है। ये आपका बिलिंग है, जहां पर आप 100 रुपए के एफर्ट्स के सामने 10,000 रुपए चार्ज करोगे तो भी क्लाइंट मुस्कुरा के आपको पैसा चुकाएगा। वेरी वेल सर। यस सर। दीपल भाई हाँ बोलिए सर। जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो छोटे और सीनियर फोटोग्राफर, आवाज नहीं आ रहा है बराबर, माइक दीपल जरा माइक प्लीज आप ऊपर लेंगे। हेलो, हमारे सीनियर और हमारे जो एक्सपोजिंग वाले फोटोग्राफर है काम नहीं है, तो मेरी ऐसे गुजारिश है कि जैसे आपने बोला कि पार्टियों से अपना छोटा वीडियो बनाओ, ये मैंने 10 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया, उनका डांस वीडियो, उनके टेस्टिमोनियल्स के जोक्स वगैरह। अभी मैं काम कर रहा हूँ एक चिल्ड्रन एकेडमी के लिए, उनके बच्चों के जूम के या उनके मोबाइल से 1-1 मिनट के वीडियो क्लिपिंग लेना और उनको बना के देना। इससे रेवेन्यू अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक रैपो उनके साथ में अच्छा बन रहा है। प्लस मेरे सीनियर जितने फोटोग्राफर्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टीचिंग, फोटोग्राफी टीचिंग का एक अपना ग्रुप बनाओ। आप 10 या 15 लोगों को उसमें साथ में लो, जो भी नॉमिनल फीस देना चाहते हैं आप लो और उनको टीचिंग करो। आप अगर उनको फोटोग्राफी सिखाओगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो सीख के, आज इतना इजी हो गया है कि मोबाइल से लोग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा टेक्निकल उनको सिखाएंगे और उनसे रेवेन्यू ले सकते हो, तो अपना एक टाइमिंग का जो पीरियड है वो निकल जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं। गुड। और अभी है ना, स्टूडेंट आपको सिर्फ चिल्ड्रन एकेडमी में मिलना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। आप टीचिंग का छोटा वीडियो बनाओ, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर आपका कोर्स अगर कोई लेना चाहता है तो उसके आप फीस चार्ज कर सकते हो, 500 रुपया, 1500 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, और आपके क्वालिटी के ऊपर लोग आपका कोर्स लेंगे और आप इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसे है, एक ऐप का नाम है उडेमी, UDEMY, उडेमी, जिसके अंदर जो आपका स्किल है वो स्किल का आप 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो बना सकते हो। जो आदमी देखेगा, आपको पहले फीस पे करेगा, देखेगा और सीखेगा। अगर आपका आउटपुट अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे अलग अलग लोकेशन से, और आपके खाते में पैसा आता जाएगा। अभी जमाना जो है ना, ये स्किल सेट का है। आपके पास हुनर कितना अच्छा है इसके ऊपर ये डिपेंड है। अभी मेरे पास सारा हुनर मेरा खुद का नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे लोगों के साथ मेरी साठगांठ बना लूंगा कि अगर मेरे पास एक बिजनेस के अंदर 4 हुनर की जरूरत है, एक मेरे पास है, तो 3 अलग हुनर वाले लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा, 4 लोगों की टीम बनाऊंगा और मैं प्रोडक्शन करूंगा या मैं क्रिएशन करूंगा। कभी भी एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों कि हम लोग जो चीज करते हैं उसमें वी हैव टू बी द बेस्ट, उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है। अगर एक रेस के अंदर 10 मर्सिडीज गाड़ियां भी एक साथ आएगी, रेस में आएगी, तो जीतने वाली गाड़ी एक ही होगी। अभी गाड़ियां सब सेम, सब में पावर सेम, सब में गियर सिस्टम सेम, लेकिन जीतेगी एक ही गाड़ी। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको उस गाड़ी को चलाने का सबसे बढ़िया हुनर था, इसलिए वो जीता है। तो हमें टेक्नोलॉजी का सामना पॉजिटिवली करना जरूरी है कि हम जो काम करते हैं उसमें हम सबसे बेस्ट कैसे हो सकते हैं। वो कोई भी जॉब होगा, वो एक एडिटिंग होगा, साउंड मिक्सिंग होगा, स्टिल फोटोग्राफी होगा, वीडियो फोटोग्राफी होगा, या कंटेंट क्रिएशन होगा, या एग्जिस्टिंग कंटेंट को जोड़कर नया कंटेंट बनाने की कला होगी, जो भी होगा, whatever it is, you have to be the best. उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सर थैंक यू सर। ढूंढना जाना पड़ता था, गुरुओं को ढूंढना पड़ता था। अभी YouTube पे सब गुरु मिलते हैं, किसी एक को फॉलो करो और कंटिन्यूसली उसका वो क्या काम करता है, आपकी जो इंटरेस्ट है आप में, फोटोग्राफी में तो फोटोग्राफी, एडिटिंग में तो एडिटिंग में, उसको फॉलो करो, पहले से लास्ट तक के सब एपिसोड देखो, यू विल बी अ मास्टर। यस एब्सोल्युटली। सर टाइम पर आए हुए हैं, तो अपना जो टाइम था 5:15 तक का था, तो और किसी को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ है तो आप बता सकते हैं,
मीनवाइल मुझे मैं किसी ने सवाल पूछा है आपके चैट के ऊपर, किसी ने मुझे प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल पूछा है हाँ कि सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट प्रॉपर्टी इश्यूज, रेंट इनकम, हाउ डिड यू सॉल्व इट, इफ पॉसिबल प्लीज रिप्लाई आफ्टर दिस इशू। सो प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने किसी को भाड़े पे दी है, अगर उसकी इनकम रुकी है तो आपको उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे मेरा इगतपुरी में एक रिसोर्ट है, अभी वो रिसोर्ट ड्यू ड्रॉप्स नाम का रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट अभी टोटली बंद है। अगर वो बंद है तो जो मेरा रिसोर्ट चलाने वाला बंदा है उसके पास से मुझे पैसे तो मिल ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसका जो सेटअप रहते हुए भी उसकी इनकम को इफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको आप भाड़ा माफ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा रिसोर्ट है और वो बंद हो गया है, तो मैं जानता हूं कि उसकी इनकम ही नहीं हुई है और वो लोगों के पगार चुका रहा है, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ मैं या तो आधा रेंट लूंगा या तो 75% रेंट लूंगा, या उसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको 100% डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। कोई अपना फायदा नहीं उठा सके, इतना ध्यान रखना जरूरी है, ना हम किसी का फायदा उठा सके, क्योंकि इसमें अपना चरित्र डिफाइन होगा। ये जो समय है, ये समय में आप लोगों को पहचानना शुरू करोगे कि आपको कहानी कौन देता है और आपको हकीकत में मदद कौन करता है। सबका चरित्र आपको ये समय में पता चलेगा। यस गुड। निखिल प्रकाश करके कुछ उनको कुछ क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज किया हुआ है। हाँ या टेल मी। मैं हाँ यस यस मैं बॉम्बे अभी तुरंत शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक फर्म है ग्रेट इंडिया शो। इससे पहले मैं IMPA का मेंबर अभी हाल में ही बना हूँ। इससे पहले मेरी एक प्रोडक्शन कंपनी थी कैंडिड क्लिकर्स, जो वेडिंग फोटोग्राफी। पर उसके साथ साथ हमने ना ऑनलाइन कंटेंट बिजनेस में अपने आप को पहले से डाल लिया था, मतलब अब से 6 महीने 8 महीने। फैंटास्टिक। जिसमें मुझको अनुमान था कि ऑनलाइन, जैसे ग्रेट इंडिया शो इज अ कंपनी विच इज क्रिएटिंग कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ आवर कल्चरल बेसिस, जो कभी खत्म नहीं होगा। आवर बेसिक मोटिव is to keep your culture alive at what caste, what religion, whatever you are. You have to keep your culture alive on the form of videos and form of text and photograph. ठीक है, मान ले आप घर में तीसी के लड्डू बनाते हैं या घर में कोई दादी कुछ बनाती है, make it a video, post it on our site and we will pay you for that. Okay, and you will get the money and we will get the revenue and we will share the revenue with each other. So I just want to offer the other people also कि this is what we are in the very small stage. अभी हम बहुत छोटे स्टेज पर है, we are not a big company. But if somebody wants to cooperate with us from their work, they want to make videos, we can do something good from our side. We can give some little money and earn by ourselves also and show the world of the unity of photographers and videographer community कि घर बैठे भी हम कुछ कर सकते हैं। Sure. बहुत बढ़िया। इसको हम लोग कहते हैं पावर सर्कल। सब लोग इकट्ठा मिलकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। सबके पास हुनर है, सबके पास कस्टमर्स है, सबके कस्टमर्स की जरूरतें हैं, तो कौन कैसे आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और शेयर कर सकते हो, यही गुरु मंत्र रहने वाला इस समय में। यस सर, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मैं अभी सर को ऑन टाइम पर आए थे। सर उनका मोबाइल नंबर मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, वो दे देंगे। और विशाल जी को कुछ क्वेश्चन है, विशाल जी पूछिए। सर एक और था, there are few people, this is basically a very important question for people who are already into problems, यानी जो लोग ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम में हैं। आज हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे मुकाम से गुजर रही है जहां लोगों को अपने ही लोगों के वजह से काम नहीं मिल पा रहा है। उसका रीजन है कि हमारे ही लोग हमारी जड़ें काट रहे हैं रेट्स में। यानी सामने वाले ने अगर 5,000 कोट किया तो दूसरा वाला 1,000 रुपए में भी काम कर देता है, उससे कम में भी काम कर देता है। बोले घर बैठने से अच्छा एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए। तो काफी लोग ऐसे हैं जिनको आज जो लॉकडाउन हुआ है उससे पहले से भी दिक्कतें चल रही थी और अब लॉकडाउन के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली। तो इस चीज को वो लोग कैसे हैंडल करें? यूनिकनेस का जमाना है मेरे दोस्त। अगर आप यूनिक बनोगे नहीं ना तो आपको कस्टमर पैसे के कंपटीशन में रवाना कर देगा। अगर आप यूनिकनेस क्रिएट करते हो तो आपको ये समस्या आएगी नहीं। जैसे हम लोग ने बोला कंटेंट क्रिएशन करो। दूसरी बात एक बताना चाहूंगा कि अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन नहीं बन सका। अगर मेरे पास यूनिक अगर हुनर होगा तो मेरे पास कस्टमर मेरे दिमाग का पैसा मेरे पास ही चुका के जाएगा। मैं जो कर सकूंगा वो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रेगुलर काम है उसका जमाना चला गया। खाली फोटोग्राफी का जमाना चला गया, खाली वीडियो बनाने का जमाना चला गया। अभी क्रिएटिविटी का जमाना है।
जो कम चार्ज करके क्रिएटिविटी अगर उतना दे सकता है तो आपको उससे अच्छा क्रिएटिविटी क्रिएट करना जरूरी है, और आपके कस्टमर्स के साथ संबंध बनाना ज्यादा जरूरी है। आपकी मार्केटिंग की स्किल, आपका कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का लेवल अलग होना चाहिए। बाकी ये जो कंपटीशन है, पैसे का कंपटीशन, कि अगर मैं 5,000 चार्ज कर रहा तो कोई आके मेरे पास से वो काम 2,000 में करके कस्टमर के पास ले जा रहा है, तो आपके पास कस्टमर को पकड़ के रखने का हुक स्ट्रांग नहीं है। हम आपके पास हुक स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं जिनके पास से काम करवाता हूँ अतुल वीडियो से, कल को कोई अगर आके मुझे बोलेगा कि मैं आपके लिए कंटेंट फ्री में करके दूंगा, तो भी मैं उससे नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सपर्टीज मालूम है, डिपेंडेबिलिटी मालूम है, क्वालिटी मालूम है, जिम्मेदारी कितना आदमी लेता है सामने वाला वो मालूम है, तो कोई मुझे डगमगा नहीं सकता। तो अभी जो कस्टमर्स रहेंगे ना, इनको रिश्ते में इंटरेस्ट है, डिपेंडेंसी में इंटरेस्ट है, और सामने वाले के क्वालिटी में और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है। ऐसा कस्टमर कहीं पर नहीं जाएगा। जिनके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये माहौल नहीं, कोई भी माहौल खतरनाक है। कि अगर समझो मैंने आज किसी के पास से 5,000 का काम 2,000 पर लेकर आ गया, तो मेरा 2,000 का काम कोई तो भी 1,500 रुपया चार्ज करके मेरे से भी लेकर चला जाए। तो वो कंपटीशन में रहने के बजाय हमें हमारा यूनिकनेस बनाना बहुत जरूरी है। एवरी पर्सन शुड बिकम लाइक अ ब्रांड, एवरी प्रोफेशनल शुड बिकम अ ब्रांड, ही शुड बिकम अ स्टार, कि ये आदमी की ये खासियत है और इसके ऊपर हम लोग डिपेंड रह सकते हैं। फिर आदमी कभी भाव नहीं पूछता, आदमी कभी नेगोशिएट नहीं करता, वो खाली फोन करके आपको बोलेगा साहब परसों के दिन फंक्शन है, आके कवर कर लीजिए, इतने सारे लोग आने वाले हैं, आप क्या बेस्ट कर सकते हो कर लेना। बहुत बढ़िया सर। ब्रांड भी अनसिक्योर है सर, ब्रांड भी अनसिक्योर है इधर। सुनील भाई एक मिनट, यही करते हैं जो हमने प्रैक्टिकली देखा। सुनील भाई एक मिनट। हाँ विशाल जी। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर व्यू पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, स्टिल वन थिंग इज देयर, यू नो देयर आर फ्यू पीपल, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली शिक्षित नहीं है, जो पढ़ लिख सकते उस लेवल पे नहीं है जहां आप, मैं या बाकी लोग कर सकते हैं। तो उनकी ये जो समस्या है, उनको अपने आप को ब्रांड बनाना हो, उनको अपने आप को एक हुनर डेवलप करना हो, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज नहीं है कि एक झटके में आ जाती है। हुनर आपको डेवलप करना पड़ता है, आपका इंटरेस्ट लाना पड़ता है। पर आज की तारीख में, विशाल जी एक मिनट, धर्मेश जी अपने स्क्रीन को कुछ डिस्टर्ब किया प्लीज। धर्मेश शाह, धर्मेश स्क्रीनशॉट का, धर्मेश जी आपने शेयर स्क्रीन को आपने डिस्टर्ब किया है कुछ, आप वापस उसकी जगह पे चले जाओ। हाँ नीचे शेयर स्क्रीन, नीचे शेयर स्क्रीन, उसको आप वापस उसकी पोजीशन पे लाके रख दो। अभी लॉग आउट, 2 मिनट के लॉग आउट हो जाओ धर्मेश। यस सर, आप चालू कीजिए सर। विशाल जी। हाँ सर, मैंने ये बोलना था कि बहुत वक्त जो हमारे बाकी लोग हैं, उनका ये दिक्कत आ रही है कि उनको अपने आप को अपडेट करना या हुनर सिखाना, वो राइट टाइम अभी नहीं है। अभी राइट टाइम एट दिस मोमेंट फॉर दोज पीपल, यानी उन लोगों के लिए अभी इस समय आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे करके उन लोग अपने आप को प्रॉपर रख सके? They need to become a part of a bigger entity, और उनका जो हुनर है वो हुनर वो बड़े एंटिटी को देना चाहिए, और उन्होंने उनका बिजनेस डेवलपमेंट करने का काम करना चाहिए। खुद के ऑपरेटिंग कॉस्ट से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि ये समय सिर्फ एक पर्टिकुलर हुनर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकेगा। सो दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे नीड टू बिकम बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी एंड टेक रेवेन्यू शेयर। बाकी एक्सपर्टीज जो वो खुद डेवलप नहीं कर सकते हैं, वो एक्सपर्टीज वो जिसके साथ जुड़ रहे हैं उनके एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड रह के काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि एक आधा व्यक्ति समझो आज 70 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए तो कोई कंप्यूटर तो सीख नहीं सकेंगे आज के जमाने में, नया स्किल्स नया कंप्यूटर एजुकेशन ले नहीं सकते हैं। लेकिन उनके समाज में जो संबंध हैं, जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं, जो जिनका उनके ऊपर विश्वास है, उसके जरिए वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बिजनेस लाकर दे सकते हैं, और उस बिजनेस के रेवेन्यू शेयर के अंदर वो रह सकते हैं, और उस काम के अंदर उनका जितना काम वो करके दे सकते हैं उतना वो करके दे पाएंगे। इट इज ऑल, दिस इज नोन एज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करके काम करना जरूरी है। हमारे रियल एस्टेट के सेक्टर में इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब कैसा होता है कि एक डेवलपर थक जाता है, हार जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, कला खत्म हो जाती है, नाम बदनाम हो जाता है, उसका माल नहीं बिकता है, तो क्या होता है
नया आदमी आता है, उसका बड़ा ब्रांड नेम लेके आता है, बड़ा गुडविल लेके आता है, जुड़ जाता है, नया पैसा लेके आता है, वो प्रोजेक्ट को पूरा करता है, आने वाले पैसे में से एक्स पैसा पुराने आदमी को देता है, वाई पैसा खुद के पास लेके जाता है और प्रोजेक्ट पूरा करके कस्टमर को खुश कर देता है. So you will have to start working in the format of joint ventures, collaborations, working together in a team, creating Good, a sir. power circle. यही आपको करना पड़ेगा. Yes, sir. Thank you, I Rajesh. welcome Alok ji and Nitin ji, our guest, today's guest. और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सोनू भाई, प्रेसिडेंट सर. हाँ बोलिए. ओके. कंसेप्ट बेचना है सर अपने. ओके गुड. तो सर राजेश जी, ये अच्छा माहौल आपने बनाया और आपके जानकारी के लिए हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन जो है वो ये लॉकडाउन पीरियड में हमारे जितने भी असिस्टेंट है या जो सिंगल मैन पावर है उनको ये लॉकडाउन पीरियड में और आगे जाके तकलीफ नहीं होवे उसके लिए फूड ग्रेन के बॉक्सेस पूरे जो हैं वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको. वो जिधर हैं उधर तक हमारे प्रेसिडेंट सर वहां तक पहुंचा रहे हैं, किरण भाई है वो लोग वहां तक पहुंचा रहे हैं. तो अभी तक नियर अबाउट 150 बॉक्सेस ऑलरेडी उनके घर के आजू बाजू तक पहुंचाया गया हुआ है. तो वो लोग एटलीस्ट ये लॉकडाउन पीरियड में उनको आगे तकलीफ नहीं होवे, जो हमारे असिस्टेंट हैं, जो हमारे लाइटमैन्स हैं उनके लिए सर. तो सर आप थैंक यू सर. और आज हमारे जो आपने राजेश सर जो प्लानिंग गुड एंटरप्राइजेस, कस्टमर्स कैसे संभालना, इनकम स्टॉप हो गया लेकिन एक्सपेंस इज ऑन, सिचुएशन को कंट्रोल करो, शांत मन, अच्छे विचार, बिजनेस को जिंदा रखना है, ग्रुप में रहना है, पावर सर्कल बनाना है, पार्टनर इन प्रोग्रेस और यूनिकनेस, ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे आपने लीड्स हमको दिए और हमारा जो मनोबल है वो आपने अच्छा संभाला और हमको शक्ति दी आगे के लॉकडाउन पीरियड खत्म होने तक और उसके बाद जो नवंबर तक हमारा सीजन ओपन होगा उसके बीच में हमको क्या करना है वो सब टिप्स आपने दिए. तो ये सब हमारे फोटोग्राफर्स आपके शुक्रगुजार हैं. तो मैं हमारे प्रेसिडेंट सर को कहूंगा एक थैंक्स मैसेज देने के लिए आपको. थैंक यू सो मच अतुल भाई. थैंक यू राजेश भाई, इट वाज अ वेरी गुड सेशन और होपफुली आपके जो भी टिप्स है हमारे सब बंदे फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाइस मीटिंग एवरीबॉडी. Thank you Rajesh sir, thank you for boosting up our morale. Welcome you are. Welcome. Thank you so much and wish you all the best. Have a God bless future. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much. Thank you.